One of the NEET 2025, one of the difficult question, and that's this question being solved by multiple methods. So there is a water tank. Obviously, water tank is in 3 dimension, and the length of the tank is L. Height of the water column is Y, while the depth of the water tank is L as well. That is, this is the diagram. This is the three-dimensional diagram of the water tank. See, the length of the water tank is L, x is L, while the height of the liquid column is Y. This is the Y is the height of the liquid column, and L is also, this L is also the depth of the tank. This L is also the depth of the tank. Now, more often we see that whenever water is being poured in a bucket, what do we observe? This is the level of water when it is being poured in a bucket. But in this question, it is being specifically mentioned, despite the angle is very small, that the surface tension force exerted by the surface of the wall on the water, it will rise so that is resulting in rising the level of the liquid column. The question is saying this is the actual configuration or the figure of rise in the liquid column because of the surface tension force acting because of the wall surface. It has been given in the question. So if we are supposed to look at the front view of this water tank, then we will have this as x and y, and the meniscus form, this dotted line is this line that is being overwrited is the meniscus that is being formed because of the surface tension force S into L. Also, it has been given in the question theta naught is very small. See, because if there is still water in a bucket, there will be a little bit increment in the height, but that height is negligible. That increment in height is negligible. That's why we neglect it. But in this question, it is being specifically mentioned that despite there is a small increment in the height because of the surface tension force S at L, this theta naught will not be neglected. That is, theta naught, it is being given in the question, that is theta naught is much less than 1. Tan theta naught is equals to sin theta naught is equals to theta naught. So this has been given in the question. Okay. Now we are supposed to calculate the density of the liquid is rho, and y is the height of the liquid column that we are supposed to calculate. Now the question is saying, the options are saying, the first option, we are supposed to calculate d2y by dx square, d2y by dx square, d2y by dx square, and dy by dx. So we are interested in calculation of dy by dx and d2y by dx square of this question. Now, as we all know, mathematically we know that radius of curvature of any meniscus is defined as 1 plus d2y by, just a minute, sorry, 1 plus dy by dx, 1 plus dy by dx whole square whole to the power 3 by 2 upon d2y by dx square. This is the radius of curvature of any curve. Our idea for the question, our idea is to calculate radius of curvature both mathematically and using the concept of physics. Specifically surface tension and fluid mechanics at any point, say at any arbitrary point P. Now, at any point P, we can say we want to calculate radius of curvature R with the help of surface tension concept and fluid mechanics concept. Now, अगर आपके पास कोई भी फ्लूइड एलिमेंट है, जैसे अगर एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, दिस इज ए ड्रॉप ऑफ वाटर बबल, दिस इज ए स्फेरिकल ड्रॉप, दिस इज ए बबल, अंदर आपके पास एयर होता है, बाहर आपके पास एयर होता है, और इन दो वाटर सरफेसेस के बीच में लिक्विड होता है किसी भी डेंसिटी रो का.
ठीक है। नाउ अगर आप इस स्फेरिकल बबल को देख रहे हैं, आप स्फेयर को अगर देख रहे हैं, स्फेयर के केस में अगर आप एलिमेंट्री सरफेस चूज़ करें, तो आपको क्या दिखेगा कि जो दो परपेंडिकुलर सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, देखो हमने इस स्फेयर के केस में एलिमेंट्री अंदर में इस स्फेयर के यहाँ पे सेंटर होगा, अगर यहाँ से कुछ इस तरीके से कट किया जाए, अगर आप 3D में स्फेयर को बना के देखें, तो अगर आप एलिमेंट्री सरफेस को बाहर निकालेंगे, जस्ट अ मिनट, आप अगर एलिमेंट्री सरफेस को बाहर निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये हो जाएगा आपके पास R2, और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये हो जाएगा आपके पास R1। स्फेयर के केस में R1 जो होता है वो R2 के बराबर होता है। इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपके पास ये जो सरफेस है जिसे ओवरराइट किया जा रहा है, दिस सरफेस एंड दिस सरफेस आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, दैट इज़ कि आपके पास एक सरफेस ये वाला होगा, दूसरा सरफेस ये वाला, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा। स्फेयर के केस में फॉर स्फेयर R1 जो होगा वो आपके पास R2 के बराबर होगा। दैट इज़ द रीज़न, अगर आप इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बेसिकली लिक्विड है, डेंसिटी रो का ऊपर से लगने वाला जो प्रेशर है, आपके पास ऊपर से लगने वाला प्रेशर आपके पास क्या है, PATM, और नीचे से लगने वाला इनसाइड प्रेशर होगा लिक्विड का। तो अगर आप ऐसा लिखना चाहें P इनसाइड माइनस PATM, इसे लिखने का तरीका होगा S/R। इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि कनकेव के साइड में हमेशा प्रेशर, S हो गया सरफेस टेंशन फोर्स, यहाँ पे लगने वाला फोर्स S, यहाँ पे S बेसिकली सरफेस टेंशन हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। R1 R2 क्या है, surfaces perpendicular to one another। Now we are going to use this concept। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, मान क्या लीजिए को सवाल में दिया गया है, ये आपके पास x है, ये y है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट लें अपने मन से, इस पॉइंट को कह दिया जाए, इस पॉइंट के ठीक नीचे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट से, इसे आप अल्फ़ा कहिए, इसे आप बीटा कहिए, ठीक है। ये बात तो आपको पता है कि कनकेव साइड में अगर आपके पास ये कनकेव है, तो अगर ये अल्फ़ा, अगर ये आपके पास बीटा है और ये आपके पास अल्फ़ा है, तो प्रेशर एट बीटा जो होगा प्रेशर एट अल्फ़ा से बड़ा होगा, और इसी प्रेशर डिफरेंस का कारण क्या होता है, सरफेस टेंशन। तो बेसिकली क्योंकि अल्फ़ा और बीटा बहुत ही क्लोज है एक दूसरे के, ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट है, अल्फ़ा बीटा ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट है, एक सरफेस के ठीक अंदर है लिक्विड सरफेस के, और दूसरा लिक्विड सरफेस के ठीक बाहर है। ये क्या है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है जिसका डेंसिटी रो है। तो PB जो होगा आपके पास P अल्फ़ा से PV जो होगा आपके पास P अल्फ़ा से बड़ा होगा, और इसी के कारण से जो P बीटा माइनस P अल्फ़ा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, S इंटू 1/R, S इंटू 1/R। अब देखना यहाँ पे ये जो सरफेस है अंदर की तरफ, तो आपके पास L लेंथ है। बेसिकली अगर हम यहाँ के सरफेस का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो आपको कैसा दिखेगा, इस वाले सरफेस का फ्री बॉडी डायग्राम आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एक ये सरफेस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R है, और एक दूसरा सरफेस
जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। देखो एक तो सरफेस आपके पास ये वाला हो गया जो इंक्लाइंड सरफेस है, इस तरीके का इंक्लाइंड सरफेस है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और एक आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, आपके पास एक दूसरा ये वाला सरफेस है जो कि ये जो सरफेस है आपके पास, ये कैसा सरफेस है आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में आर क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, मतलब R2 इन्फिनिटी हो जाएगा, R1 आपके पास R हो जाएगा, ठीक है। सो 1/r प्लस 1/इन्फिनिटी, क्योंकि R2 आपके पास इन्फिनिटी है, सो P बीटा माइनस P अल्फ़ा हो गया आपके पास S/R। तो प्रेशर डिफरेंस, अब P बीटा है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर तो भाई एटमॉस्फेयर ही है, ऊपर से लगने वाला जो प्रेशर है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो PATM इज इक्वल्स टू P अल्फ़ा प्लस S/R। तो ये आपके पास इक्वेशन ए हो गया, या इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए। दूसरा, अगर हम इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को अगर हम से पॉइंट सी लिखें, तो ये जो सरफेस यहाँ पे तो ये स्ट्रेट लाइन है, कहने का मतलब अगर हम इस लिक्विड सरफेस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये स्ट्रेट लाइन और अंदर की तरफ L लेंथ जाएगा, ये L लेंथ जाएगा, तो ये भी आपके पास स्ट्रेट लाइन, मतलब R1 भी आपके पास इन्फिनिटी और R2 भी आपके पास इन्फिनिटी। मतलब अगर C के जस्ट नीचे और जस्ट बाहर देखें, मतलब से इसको अगर हम गामा लिखें और इसे डेल्टा लिखें, ये तो खैर P बीटा, इसे गामा और इसे डेल्टा लिखें, तो वी कैन से दैट इज़ P गामा माइनस P डेल्टा विल बी इक्वल्स टू S इंटू 1/R1 इन्फिनिटी प्लस 1/इन्फिनिटी, दैट इज़ P गामा इज इक्वल्स टू P डेल्टा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे जस्ट नीचे जो प्रेशर होगा और जस्ट बाहर जो प्रेशर होगा बराबर होगा, मतलब अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन, ये जो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है से पॉइंट सी से पॉइंट डी तक जाता हुआ, इस स्ट्रेट लाइन पे सारे जगहों पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, PATM, क्योंकि P गामा जो है वो बेसिकली PATM ही है, ठीक है। और ये आपके पास P बीटा के बराबर है, तो हर जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई और हमारे पास किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक अच्छा डायग्राम बना लेते हैं। ये x, ये y, ये बात तो समझ में आ गई कि ये आपके पास एंड द नेक्स्ट वन इज, ठीक है, ये आपके पास अगर y है, इस पॉइंट पे हमें इस पॉइंट पे प्रेशर लिखना है बेसिकली, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपके पास y, दैट इज़ ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कह दीजिए आप बीटा, दैट इज़ P बीटा है आपके पास। सो बेसिकली P बीटा माइनस P माइनस P, यहाँ पे आपके पास कौन सा पॉइंट था, अल्फ़ा, जस्ट नीचे यहाँ पे ये अल्फ़ा पॉइंट, P अल्फ़ा इज इक्वल्स टू S/R, एंड P अल्फ़ा को आप लिख सकते हैं PATM माइनस रो इंटू जी इंटू वाई, और P बीटा भी आपके पास क्या है, P एटमॉस्फेरिक ही है, P बीटा आपके पास P डेल्टा के बराबर है, P गामा के बराबर है, और ये आपके पास P गामा के बराबर है, और ये भी आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। P अल्फ़ा हो गया PATM माइनस रो जी वाई। चलिए, अगर इसे इस इक्वेशन में पुट किया जाए, सो बेसिकली P अल्फ़ा हो गया PATM माइनस, तो P बीटा PATM इज इक्वल्स टू PATM माइनस रो जी वाई प्लस S/R। S क्या हो गया, सरफेस टेंशन फोर्स। अब अगर इसे सॉल्व, इफ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, देन वी कैन हैव रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू S अपॉन रो इंटू जी इंटू वाई, जस्ट ओके। सो दिस इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अभी हमने कैलकुलेट किया मैथमेटिकली कि आपके पास 1 प्लस dy/dx
होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन d2y by dx square is equals to the radius of curvature is what? S upon rho gy, S upon rho gy। इसी तरह ध्यान से समझिएगा कि अगर आपके पास थीटा नॉट बहुत बहुत छोटा है 1 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास dy by dx बहुत 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 छोटा होगा 1 से। सो इफ़ दिस इज़ द केस थीटा नॉट, और आपके पास ये किसके बराबर है? tan थीटा नॉट के और sin थीटा नॉट के। सो इफ़ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस कॉन्सेप्ट, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना चाहें तो आपके पास ये नेगलेक्ट हो जाएगा। सो वी कैन राइट 1 अपॉन d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू s अपॉन रो जी वाई। सो रो जी बाई एस इंटू वाई इज इक्वल्स टू d2y by dx स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ये ऑप्शन कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी, d2y by dx squared rho g by s into y. So this is the method 1 of the problem. Now we want to go for the method 2 as well. Method 2. अब एक मिनट इसे कॉपी कर लिया जाए, कॉपी, और यहाँ पे कॉपी हो गया था, कॉपी टू क्लिपबोर्ड एंड इफ आई ठीक है, पेस्ट हो गया। चलिए ठीक है। दूसरा मेथड ये कहता है कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स में किसी भी फ्लूइड एलिमेंट को बाहर निकालिए, उसके ऊपर फोर्सेस को लिखिए एंड देन गो बाय देन यूज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, वॉट एवर, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। सो वी आर गोइंग टू यूज द सेम कॉन्सेप्ट हियर, दैट इज अगर आप देखना चाहें, आपको ये तो पता चल गया कि पॉइंट ए और इस पॉइंट को अगर हम बी लिखें तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे प्रेशर सेम है, दैट इज पी ए इज इक्वल्स टू पी बी is equals to atmospheric pressure PATM. Now डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यहाँ पे भी लिक्विड का डेंसिटी रो है। अगर हम यहाँ से एक छोटे से एलिमेंट को देखना चाहें, इस एलिमेंट को देखना चाहें, ठीक है, इस लिक्विड एलिमेंट को देखना चाहें, सो इफ़ आर गोइंग टू फ्री डायग्राम ऑफ दिस एलिमेंट, तो आपके पास ये एक सरफेस बनेगा, ये एक सरफेस बनेगा, ये आपके पास लिक्विड एलिमेंट बनेगा। ठीक है, चलिए ध्यान से अगर देखें तो इस लिक्विड एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स कौन कौन सा है? अगर वाई डायरेक्शन के फोर्सेस की बात करें, वाई डायरेक्शन के फोर्सेस की बात करें तो आपके पास नीचे की तरफ से लगेगा PATM। देखिए आपने x डिस्टेंस पे जाके dx का एलिमेंट लिया है, आपने x डिस्टेंस पे जाके एक dx थिकनेस का एलिमेंट लिया है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास y है। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज y। सो PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो dx लेंथ, और आपको इस बात का ध्यान है अंदर की तरफ l लेंथ अंदर जा रहा है, dx इंटू एल एंड dx इंटू एल मल्टीप्लाइड बाई, हाँ, dx इंटू एल। ऊपर की तरफ से लगने वाला जो फोर्स है दैट इज ऑल्सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई dx, क्योंकि प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे ना हम लोग। अगर इस वाले देखो, अगर इस वाले सरफेस को देखें तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है,
दैट वी टेक द प्रोजेक्टेड एरिया, so दिस इज द प्रोजेक्टेड एरिया। तो ये तो आपके पास dx ही है, so dx इंटू एल। राइट डायरेक्शन से भी फोर्स लगेगा और इधर से भी आपके पास फोर्स लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि dx डिस्टेंस बहुत ही छोटा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, मतलब इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस भी ज़ीरो के आसपास ही होगा। एट द सेम टाइम ये जो फ्लूइड एलिमेंट है एक्स डायरेक्शन में रेस्ट में है, तो एक्स डायरेक्शन में प्रेशर चेंज होने की गारंटी, एक्स डायरेक्शन में प्रेशर चेंज होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। नाउ अगर हम दूसरा फोर्स इस पर लिखना चाहें, दैट इज सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, तो अब अगर आप इस पर सरफेस टेंशन फोर्स लिखें तो एस इंटू एल, और ये जो एंगल है बहुत ही छोटा एंगल, वी आर गोइंग टू राइट इट एज थीटा प्लस डी थीटा। मेरे भाई अगर यहाँ पे थीटा नॉट है और थीटा नॉट बहुत बहुत छोटा है वन से, तो थीटा भी आपके पास बहुत बहुत छोटा होगा वन से। ये थीटा, ऑन द सेकेंड वन इज सरफेस टेंशन फोर्स एक्टिंग लाइक दिस वन, एस इंटू एल, एंड द एंगल मेड बाई इट इज से थीटा। ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वैसे भी इस फ्लूइड एलिमेंट का कोई भी मूवमेंट नहीं है। वी आर मेनली कंसर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन, और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा है, दैट इज डी एम इंटू जी, सिंपल। नाउ विच इज बैलेंसिंग दिस, तो वर्टिकल कंपोनेंट फोर्सेस को अगर बैलेंस करके लिखें, वी कैन राइट एस इंटू एल, एस इंटू एल साइन थीटा प्लस डी थीटा, ओके, माइनस ऑब्वियस सी बात है, ये क्या हो जाएगा एस इंटू एल कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एस इंटू एल कॉस थीटा प्लस डी थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप लिखना चाहें तो पहले वर्टिकल डायरेक्शन में लिखते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्सेस को लिख के देखेंगे क्या होता है। एस इंटू एल थीटा प्लस डी थीटा माइनस एस इंटू एल देखो, अगर हम कंपोनेंट्स में तोड़ के देखें तो आपके पास ये तो नीचे की तरफ आ जाएगा, ये आपके पास नीचे की तरफ आएगा, ये आपके पास नीचे की तरफ आएगा, दैट इज एस इंटू एल एस इंटू एल साइन थीटा, और ऊपर की तरफ ये आ जाएगा एस इंटू एल साइन थीटा प्लस डी थीटा। सो एस इंटू एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू डी एम जी। इज इक्वल्स टू डी एम जी। नाउ एस इंटू एल को कॉमन निकाल लीजिए, जो कि साइन थीटा टेन थीटा के बराबर है, तो वी कैन राइट इट एज टेन ऑफ थीटा प्लस डी थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा इज इक्वल्स टू डी एम को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी एम को लिख सकते हैं वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज डी एक्स, ओके, मल्टीप्लाइड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई जी। अब इस बात को आप समझिए फर्स्ट प्रिंसिपल से, जैसे मान लो अगर हमारे पास एफ एक्स है, ठीक है, और अगर हमें डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स लिखना है, तो लिखने का क्या तरीका होता है, दैट इज़ एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। कहने का मतलब अगर कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में हो तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, या अगर हमें डी ऑफ tan थीटा बाई डी एक्स लिखना है तो क्या तरीका होगा लिखने का, एफ ऑफ
डिफ्रेंसिएशन ऑफ, अगर इस तरह से लिखा है इसका मतलब हो गया डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan थीटा विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan थीटा विथ रिस्पेक्ट टू x। सो अब अगर हम इसमें से l और l को कैंसिल आउट कर दें, ठीक है, वी कैन राइट दिस इंटायर इक्वेशन एज tan ऑफ थीटा प्लस डी थीटा माइनस tan थीटा अपॉन डी एक्स इज इक्वल, इसे लिख सकते हैं डी ऑफ tan थीटा बाई डी एक्स, डी ऑफ tan थीटा बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू रो वाई इंटू जी। तो एस डी बाई डी एक्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू रो वाई इंटू जी, और tan थीटा है क्या, डी वाई बाई डी एक्स। सो डी बाई डी एक्स ऑफ dy by dx is equals to rho g by s into y. This is d2y upon dx square, that is rho g by s into y. तो ये आपका मेथड 2 हो गया, अगेन ऑप्शन बी। नाउ वी आर लुकिंग फॉर मेथड 3। मेथड 3, इस पर्टिकुलर मेथड में देखो फ्लूइड एलिमेंट में किसी भी डायमेंशन का या किसी भी लेंथ का फ्लूइड निकाल के उसे एनालाइज कर सकते हैं, और ख़ास तौर से वी आर गोइंग टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज प्रेशर। एवरेज प्रेशर के कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज़ किया जाएगा। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। नाउ इस पार्टिकुलर अप्रोच में वी आर गोइंग टू टेक अ बल्क ऑफ फ्लूइड एलिमेंट एंड rewrite all the horizontal and vertical forces. First we balance the vertical forces, then we balance the horizontal forces to get the value of d2y by dx square. So अगर हम इसे देखना चाहें तो कैन वी राइट, देखिएगा ध्यान से, इस बात को तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज़ PATM, ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर होगा दैट इज़ समथिंग PATM माइनस रो जी इंटू वाई। ओके, सो बेसिकली जो ये तो आपके पास ये जो ब्लू लाइन है ये बेसिकली वॉल ऑफ द लिक्विड है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू टेक द कंप्लीट फ्लूइड एलिमेंट। ये जो आपके पास कुछ इस तरीके के शेप में फ्लूइड का एलिमेंट है, वी आर गोइंग टू टेक द कंप्लीट फ्लूइड एलिमेंट एंड रीराइट द फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन एंड बैलेंस देम। सो बेसिकली यहाँ पे लगने वाला जो फोर्स होगा दैट इज़ एवरेज फोर्स होगा मल्टीप्लाइड बाई, आपको पता है कि x इसमें एरिया चाहिए, तो ये तो लेंथ आपके पास y हो जाएगा, दिस लेंथ इज़ y, एंड इनसाइड अंदर की तरफ l लेंथ है तो y इंटू एल। इधर से लगने वाला हॉरिजॉन्टल, इधर से लगने वाला एटमॉस्फेरिक ही होगा मल्टीप्लाइड बाई y इंटू एल। क्यों? क्योंकि जब भी आपके पास इंक्लाइंड सरफेस होता है तब हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। सो वी टेक द प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है, ऊपर से लगने वाला फोर्स भी आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होगा मल्टीप्लाइड बाई x, ये डिस्टेंस पूरा का पूरा x हो जाएगा, ठीक है, या आप इसे l भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, x PATM मल्टीप्लाइड बाई l ही लिख लीजिए, l मल्टीप्लाइड बाई l, PATM मल्टीप्लाइड बाई l स्क्वायर। नीचे की तरफ से लगने वाला फोर्स भी PATM मल्टीप्लाइड बाई l स्क्वायर, तो y डायरेक्शन का फोर्स, हाँ, और साथ ही साथ सरफेस टेंशन फोर्स यहाँ पे जो लग रहा है वो हो गया S इंटू एल, और ये एंगल क्या है आपके पास, थीटा नॉट। ओके, थीटा भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हल्का अप्रॉक्सीमेशन चल सकता है। सो नाउ इफ़ वी राइट, अगर हम इस पे लिखना चाहें फोर्सेस को,
एक्स डायरेक्शन में। तो पहले तो आपको पी एवरेज लिखना होगा, पी एवरेज लिखना होगा। पी एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज पी ए टी एम प्लस पी ए टी एम माइनस रो जी वाई बाई टू। पी ए टी एम प्लस पी ए टी एम माइनस रो जी वाई बाई टू, ये आपके पास एक एवरेज फोर्स है। सो अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस को लिखें तो आपके पास क्या होगा, इधर से लगने वाला जो एक है एस इंटू एल। ओके, नाउ वी कैन राइट अगर इसका देखें एक्स डायरेक्शन में एस एल कॉस थीटा नॉट माइनस एस एल, एस एल कॉस थीटा नॉट माइनस एस एल, ठीक है। पी ए टी एम एस एल कॉस थीटा नॉट माइनस एस एल प्लस पी ए टी एम वाई इंटू एल इज इक्वल टू एवरेज प्रेशर क्या है, टू पी ए टी एम टू पी ए टी एम माइनस रो जी वाई बाई टू मल्टीप्लाइड बाई एल इंटू वाई। सो तो आपके पास पी ए टी एम वाई एल तो कैंसल आउट हो गया। सो यू कैन राइट एस एल कॉस थीटा नॉट माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस रो जी वाई स्क्वायर एल बाई टू, ठीक है। देखो पी ए टी एम बाई टू पी ए टी एम बाई टू, पी ए टी एम वाई एल कैंसल आउट। सो रो जी वाई बाई टू माइनस रो जी वाई बाई टू इंटू एल इंटू वाई, सो माइनस रो जी वाई स्क्वायर एल बाई टू। इसे अगर सॉल्व करके देखा जाए तो एस एल टू साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई टू इज इक्वल्स टू वॉट, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, यहाँ माइनस लग जाएगा, रो जी वाई स्क्वायर एल बाई टू। चलिए कोई बात नहीं, एल से एल को कैंसल आउट कर दें। चूँकि थीटा नॉट बहुत ही स्मॉल है तो टैन थीटा नॉट साइन थीटा नॉट के बराबर हो जाएगा। सो कैन वी राइट एस इंटू टू टैन थीटा नॉट बाई टू, और ये आपके पास थीटा नॉट के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू रो जी वाई स्क्वायर बाई टू। हमें चाहिए क्या, हमें डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। सो कैन वी राइट थीटा टू कैंसल आउट, टू साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई टू, तो आपके पास ये साइन स्क्वायर में आ जाएगा। तो आपके पास ये क्या बनेगा, एस इंटू फोर टैन स्क्वायर थीटा नॉट बाई टू इज इक्वल टू रो जी वाई स्क्वायर। सॉल्व करें, अगर हम यहाँ से y कैलकुलेट करना चाहें तो पहले तो क्या हो जाएगा, s अंडर रूट ऑफ s अपॉन रो इंटू जी, ठीक है। टू टैन थीटा नॉट बाई टू, टू टैन थीटा नॉट बाई टू, ठीक है। दैट इज y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s अपॉन रो इंटू जी। थीटा नॉट बाई टू को थीटा नॉट बाई टू लिख सकते हैं, टू इंटू थीटा नॉट बाई टू लिख सकते हैं, कैंसल आउट। सो y इज बेसिकली अंडर रूट s अपॉन रो इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई थीटा नॉट। अगर हम थीटा नॉट को टैन थीटा, देखो थीटा नॉट टैन थीटा नॉट के बराबर है और ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। चलिए, सो वी कैन राइट थीटा नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रो इंटू जी बाई एस मल्टीप्लाइड बाई वाई। थीटा नॉट इज नथिंग बट थीटा नॉट इज
थीटा नॉट इज नथिंग बट dy by dx. So dy by dx is equals to अंडर रूट ऑफ रो जी बाई एस इंटू वाई. हमें क्या चाहिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए. तो बेसिकली अगर हम डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखें, सो वी कैन राइट अंडर रूट ऑफ रो जी बाई एस मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स. या अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करके, हाँ ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स क्या है आपके पास, tan थीटा और tan थीटा. एक सेकेंड, डी वाई बाई डी एक्स है आपके पास थीटा नॉट. थीटा नॉट की वैल्यू क्या है, थीटा नॉट की वैल्यू अगेन, हाँ ठीक है, अगेन थीटा नॉट की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ रो जी अपॉन एस इंटू वाई. तो आप इसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ रो जी बाई एस अंडर रूट ऑफ रो जी बाई एस इंटू वाई. तो आपके पास फिर से आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो जी बाई एस इंटू वाई. तो ये आपके पास हो गया थर्ड मेथड. नाउ वी आर लुकिंग फॉर फोर्थ मेथड एज वेल. क्योंकि अब आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करके कैलकुलेट किया है. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बाई बैलेंसिंग फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन एज वेल. अब अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखना चाहें, कॉपी कर लिया जाए इस डायग्राम को. लेट मी कॉपी दिस डायग्राम. नहीं कॉपी नहीं, ठीक यही ठीक है. just a minute. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आपने अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करके कैलकुलेट किया डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर. अब वर्टिकल डायरेक्शन की अगर हम बात करें, अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करके लिख रहे हैं डायरेक्टली, दैट इज़ अगर हम देखें ध्यान से, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक ये फोर्स लगेगा, दैट इज़ एस एल साइन थीटा नॉट, एस इंटू एल साइन थीटा नॉट, चूँकि और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, एम इंटू जी, दैट्स इट. तो एस एल साइन थीटा नॉट इज इक्वल्स टू नथिंग बट डी एम इंटू जी, क्योंकि पी ए टी एम मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स इंटू एल, और पी ए टी एम मल्टीप्लाइड बाई यहाँ भी डी एक्स इंटू एल. ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये बनेगा डी एम, सो एस इंटू एल साइन थीटा नॉट. तो आप क्या कीजिए, कहीं पे एलिमेंट ले लीजिए, एक्स पे जाके डी एक्स का अगर एलिमेंट लेके देखें तो आपके पास जो मास होगा बेसिकली लेंथ एल ही है. तो जस्ट अ मिनट, थोड़ा डायग्राम ढंग से बना देते हैं. डिलीट वन पेज मोर. सो डी एम को अगर लिखना चाहें तो वी कैन राइट इट एज लाइक दिस वन. आपके पास ये तो एक्सेस हो गया, ये लाइन यहाँ से
ऊपर इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे अगर हम dx का एलिमेंट लें, ठीक है, ये dx का एलिमेंट है, इसका मास क्या हो जाएगा dm, सो y और ये dx, सो बेसिकली dm कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ y dx इंटू l, y dx dm मल्टीप्लाइड बाई l, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी रो, मास मल्टीप्लाइड बाई g। नाउ s इंटू l साइन थीटा नॉट, ये क्या हो गया आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाना जरूरी है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx रो इंटू g इंटू l। तो l से l कैंसिल, और साइन थीटा नॉट को आप टेन थीटा नॉट लिख दीजिए। तो s टेन थीटा नॉट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू जी इंटीग्रेशन ऑफ y dx। s इंटू टेन थीटा नॉट क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, अपॉन रो इंटू जी इंटीग्रेशन ऑफ y dx। इस बात का खास ख्याल रखना है कि अगर आप जैसे मान लो y dx को इंटीग्रेट करके तुमको मिला समथिंग कैपिटल y, तो अगर तुम कैपिटल y को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो तुमको क्या मिलेगा, y dx को तुम इंटीग्रेट किया, तुम कैपिटल y मिला, अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तुमको वापस से y मिल जाएगा। तो अगर हम d2y बाई dx स्क्वायर निकालना चाहते हैं, सो डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, एस और रोजी तो कांस्टेंट ही है, रोजी बाई एस, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ y dx, है कि नहीं, इसका इंटीग्रेशन जब भी कैपिटल Y बनेगा उसका डिफ्रेंशिएशन, सो इट कम्स आउट टू बी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर is equals to rho g by s into y. So these are the 4 different methods of the NEET problem. Thank you.